Good morning, class. So today we'll continue with chapter number 10, straight lines. So yesterday I told you about the distance formula, section formula, as well as distance formula, section formula, and one more thing I told you, that was area of triangle. Yeah. So today what we are going to do, we'll start with the main topic of this chapter, that is slope of a line. Slope of a line. You all know the meaning of a line. There is no need to explain that. Suppose we are having a Cartesian plane. This is your Cartesian plane, and this is a line passing. A line is passing like this. Yeah? A line is passing like this in the Cartesian plane. Okay? This is your xy plane. This is y-axis. This is x-axis. Can you all hear me? Am I audible? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So what I'm saying, slope of a line we are explaining. This is your Cartesian plane. This is your Cartesian plane and this is a line. Now what does it mean, slope of a line? Slope of a line means what? The angle this line makes with the positive direction of x-axis. The angle this line makes with the positive direction of x-axis, that too in the anti-clockwise direction. Now just see, extend this line. This line is still here. We can extend this line. Can we extend this line this way? It will cut the x-axis. I'm darkening it. It is cutting this x-axis. Where? At this point, let it be A. This line is cutting the x-axis at point A. So, this angle which the positive direct x-axis makes with this line, this theta, this angle is what? Theta. So, slope is what? Slope is equal to tan of theta. Slope is equal to what? Tan of this angle. Clear? Tangent of this angle is called slope of a line. This is also denoted by the symbol m. We denote slope by m also. Generally in equations we don't denote it by tan theta, we denote it by m. Yeah, slope of line is given as m. One more method is there to find the slope. If you know 2 points on a line. Yeah, so I'll tell you how. Just see. In this only I will tell you. Suppose this is your point P, this is your point Q. Clear? Let P be the point x1, y1 and Q be the point x2, y. Yeah. Suppose we don't know theta. Let it be. We don't know the value of theta here. है ना? हमें क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? Now we know this point x1, y1. We know this point x2, y2. We know that this angle is theta. That means if we draw a parallel line to x-axis, x-axis की अगर मैं parallel draw करूँगी, so these two lines are parallel and this is the transversal. So this angle will also be theta. Corresponding angles. पता है ना ये तो, है ना? Two lines, this line, this x-axis as well as this line, when they are parallel and the transversal AP is passing through it, that means what? This angle will be equal to this angle. So this angle will be theta. Now draw a perpendicular on it. Can we draw a perpendicular from Q? We have drawn a perpendicular from Q. This angle is what? 90 degree. Now what we have to find? Tan theta. Now tan theta will be equal to what? We know that this is only theta, no? So tangent of this theta is what? Perpendicular upon base. Perpendicular upon base. अब P को इससे मत consider कर लेना. This is perpendicular upon base. Now how if you write perpendicular? Perpendicular क्या है? ये distance. अब ये distance क्या है? ये अपन ने last अभी जब PQ distance निकाला तो तब भी बताया था. ये distance कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का distance है y2 और यहाँ से यहाँ तक का distance है y1. तो ये distance कितना हो जाएगा? y2 minus y1, है ना? ये distance QM ले लो. QM डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? QM अपॉन PM, है ना? विजिबल है ना? QM अपॉन PM. अब QM यहाँ पे लिख लेते हैं अपन. tan थीटा इज इक्वल टू QM अपॉन PM. नाउ व्हाट इज QM? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QM? y2 माइनस y1. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका है y2. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y1. तो यहाँ से यहाँ तक का भी y1 हुआ, ये y1 हुआ, ये पूरा y2 हुआ. तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1 अपॉन. Now this distance will be what? Anyone who can tell me? This PM distance, same way from here origin. X2 minus X1. Very good. X2 minus X1. So your distance is what? X2 minus X1.
So your tan theta will be what? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you can find slope in two ways. One, if you know the angle the x-axis make with the line. अगर आपको x-axis का line के साथ angle पता है तो आप निकाल सकते हैं. अब वो ध्यान रखना, अब ये line इस x-axis के साथ ये angle भी तो बना रही है ना? x-axis ये angle भी तो बना रही है. हमें क्या लेना है? In the anti-clockwise direction. Angle किस डायरेक्शन में लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से. अब ये मत सोचना अगर लाइन यहाँ से पास कर रही है तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन. ये पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अगर मैं ये इसको ओरिजिन मानूं तो ये पॉजिटिव साइड हो गई ना. आप एक्स एक्सिस का इस तरफ पॉजिटिव है ना, तो उसको नहीं लेना है कि ये यहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन यहाँ है तो ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी नहीं. अगर लाइन यहाँ से पास कर रही है तो ये एंगल होगा. ठीक है, तो कहीं से भी पास करिए, आपको ये एक्स एक्सिस, ये मान लो आप एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है. ये ध्यान रखना है आपको. वो ही tan थीटा होता है. अगर किसी और से मिल रहा हो तो वो एंगल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो आप ले लो, ये लाइन यहाँ से भी एंगल बना रही है, ये एंगल, ये लाइन यहाँ से भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, यहाँ से भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है. तो कौन सा लेना है? ओनली विच इट इज मेकिंग विद द positive direction of x-axis as well as in the anti-clockwise direction. Yeah. So two ways are there to find the slope. Once again, I'm telling you. One, if you know the angle theta, which the line makes with the x-axis. Clear? And second one is if you know 2 points on a line. अगर आपको 2 points पता है line पे, तो भी आप slope निकाल सकते हैं. That is y2 minus y1. ये क्या है? y2 minus y1 upon x2 minus x. These are two ways to find the slope. Clear? नाउ हम इसमें कंडीशंस ले लेंगे. क्या कंडीशन ले लेंगे? अगर थीटा की वैल्यू क्या है? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा बाय sin 90 बाय cos 90. sin 90 तो होता है 1, cos 90 होता है 0. तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड. सबको पता है tan 90 क्या होता है? Everyone knows tan 90 is what? Not defined. So if you say tan 90 is not defined, then if tan 90 is not defined, that means what? That means what? अगर ये लाइन सपोज ये आपकी ये y एक्सिस है, x एक्सिस के साथ ये y एक्सिस मिल रही है, बना रही है ना 90 डिग्री का एंगल, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा, ये इसका स्लोप अपन ने मान लिया m1 है, इसका स्लोप अपन ने मान लिया m2 है. तो ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड का मतलब और क्या हो जाता है आपका? दैट आपकी वैल्यू क्या हो गई? ये आपकी वैल्यू हो गई 10. इसका स्लोप tan थीटा क्या हो गया? यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो गया. नॉट डिफाइंड का मतलब अभी मैं आपको चलो एक टॉपिक और समझा के फिर समझाती हूँ ताकि क्लियर हो. इस कंडीशन को अपन 2 मिनट बाद लेते हैं क्योंकि एक और चीज समझानी है, अदरवाइज. Now just see when slope is the value of theta is from 0 to 90 degree, है ना? अगर अपना 90 से कम है या बराबर है और 0 से, तो हमारा जो एंगल बनेगा ये देखो, यहाँ पे ले लेते हैं अपन. ये एंगल क्या बन रहा है? एक्यूट बन रहा है. ठीक है, ये 90 डिग्री से क्या है? थीटा क्या है? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90. आप ग्रेटर देन ही लो क्योंकि 0 के बराबर तो लेंगे नहीं हम. 0 और 90 के जब बीच में होगा एंगल, व्हेन द एंगल इज बिटवीन 0 एंड 90, दिस विल बी व्हाट? एन एक्यूट एंगल. और जब भी एक्यूट एंगल होगा तो एक्यूट एंगल होगा तो मींस क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan, द वैल्यू ऑफ tan इज व्हाट? पॉजिटिव. तो हमारा स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. ठीक है, स्लोप क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा. ये पहली कंडीशन आपकी. when theta is between 0 to 90. now you just see when theta is greater than 90 and less than 180 डिग्री. ठीक है, अब थीटा से ये अगर लाइन यहाँ से जा रही है अपनी, यू जा रही है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ आप ये नहीं, आप यू ले लो एंगल. एक मिनट, अपन ये कंडीशन यहाँ दिखा देती हूँ मैं. ये अगर लाइन आपकी यू जा रही है, ठीक है, तो इसके साथ एंगल क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? दिख रहा है ना आपको क्यू से? दिस एंगल इज व्हाट? मोर देन 90. 90 कहेंगे तो अपन कहाँ आएगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये 90 डिग्री, तो 90 से ज्यादा है. तो व्हेनेवर द एंगल इज मोर देन 90,
तो ये मत सोचना कि ये इसी में लाई कर रहा है, तो एंगल की वैल्यू हमेशा क्या है 90 से ज्यादा। तो ये कंडीशन है ना, जब भी थीटा 90 और 180 के बीच में होगा दैट मीन्स टेन थीटा विल बी व्हाट, टेन थीटा विल बी व्हाट, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों क्यों क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है वैल्यूज नेगेटिव होती है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। तो यहाँ आपका देखो ये कंडीशन पे आपका स्लोप पॉजिटिव था, थीटा से 90 के बीच में, थीटा 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव था, फिर आपका नेगेटिव हुआ, है ना। अब हम बात करेंगे, दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, ठीक है, जस्ट सी दिस कंडीशन, if we are having this is your origin, this is one line, है ना। Now take any two parallel lines. Now हमने एक ये पैरेलल लाइन ले ली, इसके पैरेलल हमने एक और ये लाइन ले ली, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये L1 ले लो, ये L2 ले लो। Now what is the relation between slope of L1 and L2? Just see, आप देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, this angle will also be theta. Why? Just see, these two lines are parallel and this is a transversal. This L1 is parallel to L2 and this line is a, this x-axis, this is y-axis, this x-axis is a transversal, so these two angles will be equal, this will be theta then this will be theta, तो इनका tan of theta क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो इनका tan of theta भी बराबर होगा। If tan theta is equal that means what, slope of, what we can say, slope of L1 is equal to slope of L2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, when L1 is parallel to L2, जब L1 L2 के पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। क्यों होगा, I have told you, tan of theta will be the same, clear, whenever the lines are parallel, clear। Then just see, if theta same है तो tan of theta भी same होगा। Now just see, if we are having two perpendicular lines, this is your x-axis and then this is your y-axis। अब हम यही x-axis y-axis को ले लें, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो इस x-axis पे स्लोप क्या होगा, एनी टू पॉइंट्स इफ यू टेक, देखो इधर स्लोप क्या होता है, हमें 2 पॉइंट्स हमने ले लिए, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ एक पॉइंट ले लो आप 2 0 3 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे ये y2 माइनस y1 क्या हुआ 0, तो ये हो गया स्लोप इसका 0 हो गया। और इसका क्या हो जाएगा स्लोप, अच्छा इससे नहीं समझाते अपन, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप सिर्फ ये अभी तो फिलहाल के लिए आप इसको अपन एक और टॉपिक के बाद लेंगे, आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर, व्हेन यू मल्टीप्लाई द स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस यू विल गेट व्हाट, द स्लोप एज -1, yeah, what you are going to get, slope will be -1, just see, if L1 is the slope of first line and L2 is the slope of second line and L1 is, when L1 is perpendicular to L2, जब हम बोल रहे हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, L1 is perpendicular to L2, तो स्लोप ऑफ L1 हमने मान लिया m1 है, स्लोप ऑफ L2 हमने मान लिया m2 है, इन दोनों का स्लोप क्या होगा -1, इन दोनों का स्लोप क्या होगा -1, क्लियर। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस होता है, इसको ये देखो, I'll try to explain you, just see, this is your y-axis, this is your x-axis, है ना, ये x-axis और y-axis है। अब हम दो लाइंस ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, L1 L2, तो L1 L2 के बीच में लाइन एंगल क्या बन गया, थीटा, L1 L2 के बीच में एंगल क्या बन गया, थीटा। तो अब आप देखो
नाउ जस्ट सी, ये एंगल आप ले लो यहाँ पे, द लाइन L1 makes an angle alpha with it and this angle is beta. तो tan अल्फा इसका लाइन L1 का स्लोप क्या हुआ, tan अल्फा। L2 का स्लोप क्या हुआ, मैं स्लोप नहीं लिख रही हूँ ना, स्लोप लिख लो आप, स्लोप ऑफ L1 स्लोप ऑफ L2 क्या होगा, tan ऑफ बीटा, है ना। ये आपका tan अल्फा स्लोप हुआ, ये tan बीटा स्लोप हुआ, क्या। अब देखो आप जस्ट सी, if we draw a perpendicular line, sorry parallel line to x axis, मैंने x axis के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की, तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये दो लाइंस, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, और एक टाइम ये ट्रांसवर्सल होगी, एक टाइम ये ट्रांसवर्सल होगी, दोनों को ले लेंगे अपन। तो ये एंगल कितना हो गया, देखो इधर, ये एंगल बीटा है, ये एंगल क्या है, बीटा है, ये ट्रांसवर्सल है, देखो इधर, ये सॉरी ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये बीटा है ना। तो ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये एंगल भी बीटा होगा, ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये एंगल और ये एंगल, ये भी बीटा होगा। सेम वे ये अल्फा है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अल्फा है, तो आपका ये वाला भी अल्फा होगा, ये वाला भी अल्फा होगा ना, ये अल्फा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी बीटा होगा। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये टोटल एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल विल बी व्हाट, कैन यू फाइंड दिस एंगल, दिस विल बी दिस 180 माइनस बीटा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस बीटा, ये एंगल हो गया 180 माइनस बीटा, और इन तीनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, जस्ट फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan अल्फा को हम कैसे लिख सकते हैं, ये tan अल्फा, ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, ठीक, और ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, इज इट विजिबल, अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना, ये एंगल 180 माइनस बीटा, ये थीटा, ये अल्फा, इससे हमारा एंगल का रिलेशन निकल जाएगा, ये 180 से 180 कैंसिल, अल्फा माइनस बीटा, तो अपन यहाँ वहां ले जाओ इसको, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, बीटा विल बी इक्वल टू, बीटा कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट, अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू दिस, तो आप देखो यहाँ पे आपका आ गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू सॉरी अल्फा प्लस थीटा। अब यहाँ आप कंडीशन लगा दो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखती हूँ, ठीक है, या अल्फा की वैल्यू 90, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ये एंगल क्या हुआ 90 डिग्री, तो थीटा क्या हो गया, बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस 90, तो 10 बीटा क्या हो गया, ये अगर मैं दोनों के बीच का एंगल मान लिया, हमने बोला ना दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, इज इट विजिबल, just see from here we can get beta is equal to alpha plus 90, 90 क्यों लिखा मैंने थीटा, थीटा मतलब क्या हुआ, दो एंगल, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री, क्लियर। तो स्लोप ऑफ L1 क्या था, L1 का स्लोप tan अल्फा था, L2 का स्लोप tan बीटा था, तो tan बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री, tan 90 plus theta, anyone can tell what is tan 90 plus theta, tan 90 plus theta second quadrant, I have told you in trigonometry कैसे निकालते हैं, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा इधर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो गया माइनस कॉट थीटा, अगर नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, अपना क्या आया, टेन बीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ 90 प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट बीटा, अब माइनस कॉट बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन बीटा, टेन बीटा, क्लियर, लिख सकते हैं ना।
सॉरी अल्फा प्लस 19 कोई बोल नहीं रहा है ना, 10 अल्फा कॉट अल्फा हुआ। तो अब अपना स्लोप 10 अल्फा क्या है, m1 लिया अपन ने, इसका स्लोप m1 लिया, ये m2 लिया, तो ये 10 बीटा क्या हो गया, ये m2 हो गया। तो m2 इज इक्वल टू व्हाट, -1 अपॉन m1। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कंडीशन दी थी, that slope of two lines when they multiplied they give the result -1. So if two lines are perpendicular, this is the proof. But proof is not useful, the result is useful, but you should know things कि कैसे आया, because किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी कुछ चीजें पूछ ली जाती है, तो these all things will be very useful. So if two lines are perpendicular, the multiplication of their slope is -1. And if two lines are parallel, their slopes will be the same. अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होंगे, अगर परपेंडिकुलर हैं देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द टू लाइंस विल बी -1. क्लियर? सो हमने क्या क्या पढ़ा आज? हाँ, एक तो हमने पढ़ा स्लोप कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड स्लोप बाय tan थीटा, एंड इफ यू नो 2 पॉइंट्स, एंड if the value of theta is between 0 to 90, if the theta is between 0 to 90, your slope is what? Slope will be what? Positive. If it is between 90 to 180, the slope will be negative. And at theta is equal to 0, theta is equal to 0 means lines parallel है. अगर दो lines के बीच के angle 0 आ रहा है, that means क्या, यहाँ तो line coincide कर रही है, यहाँ parallel है. तो जब line parallel होती है तो दोनों का slope क्या होता है, same होता है. और lines अगर perpendicular हैं, अगर perpendicular दो lines हैं, तो उनका slope का product क्या होता है, -1. So I think so this must be clear to you all. Now angle between two lines. ऐसे ये कंसेप्ट अपन ने इसमें 10th C में पढ़ लिया. Then also I will tell you what is the angle between the two lines if the two lines are not perpendicular. अगर दो lines perpendicular नहीं है, जरूरी थोड़ी है हर बार perpendicular हो, तो दो lines के बीच का angle कैसे निकालते हैं? So next is what? Angle between two lines. So now you will consider a Cartesian plane. Clear? Now you take one line this way, another line this way, because we don't have to take perpendicular lines, है ना? हमें perpendicular lines नहीं लेनी है. ये L1 ले लिया अपन ने, ये L2 ले लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है. अपन ने इस एंगल को ले लो आप फाई, ये एंगल फिर थीटा हो गया. दो वर्टिकली अपोजिट लाइंस हैं, L1 L2 क्या है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. क्लियर? अब हम मान लेते हैं ये एंगल है α1, ये एंगल है α2. क्लियर? सो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिस ट्रायंगल, टेक इट एज ABC. In this triangle ABC, what can you apply exterior angle theorem? Exterior angle theorem apply कर सकते हैं आप. तो α2, यहाँ अपन α2 से लिखते हैं, α2 is equal to थीटा प्लस α1. ठीक है, α2 is equal to थीटा प्लस α1. तो अपना क्या हो सकता है, α2 माइनस α1 is equal to थीटा. ये पहली इक्वेशन आप नोट कर लो. क्लियर? देन व्हाट यू आर हैविंग, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये देखो इधर से ये एक लाइन है L2, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 डिग्री. अब थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की है, α2 माइनस α1. थीटा की वैल्यू क्या है, α2 माइनस α1. तो अब हम लिख सकते हैं α2s, α2 को हम कैसे लिख सकते हैं, α2s थीटा प्लस α1. ठीक है, थीटा प्लस α1. अब हमारा यही तो एंगल निकाला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा. So your tan theta, the angle between two lines is, कैसे लिख सकते हैं, थीटा क्या है, α2 माइनस α1, tan ऑफ α2 माइनस α1. अब आपको पता है tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला. व्हाट इज tan ऑफ a माइनस b? tan ऑफ α2 माइनस tan ऑफ α1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ α2 α1, सॉरी tan α1. ठीक है, अब tan α2 क्या है, इसको हम स्मॉल फॉर्म्स में
छोटे उसमें कैसे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या है m2 माइनस स्लोप ऑफ लाइन 1 m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. So this is what tan theta, the slope between the two lines. तो दो लाइंस के बीच का स्लोप क्या होता है, अब ये हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें x एक्सिस के अलाउंट से लेना है, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. Is that clear everyone? Clear? Next is collinearity of 3 points. कैसे निकालेंगे कि 3 points are collinear? Anyone who can tell, again you know the area of triangle. एक तो आप area of triangle से निकाल सकते हैं कि 3 points are collinear, that means area of triangle will be 0. ये तो अपन ने 10th में भी पढ़ा है. Collinearity of 3 points. 3 points कब collinear होते हैं? Either what? Area of triangle is equal to 0. अगर ये 3 points हैं, ये कब कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, ए बी सी, हमने 3 पॉइंट लिए. अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, एज व्हाट वी आर डूइंग स्ट्रेट लाइंस. अगर हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं और हमें स्लोप के बारे में पता है, तो अगर ये लाइन ए बी सी है, तो जो ए बी का स्लोप होगा वही तो बी सी का स्लोप होगा, क्योंकि लाइन तो सेम है ना. एक ही लाइन के दो स्लोप तो हो नहीं सकते. इफ दिस लाइन इज देयर, दिस इज द सेम लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस से यहाँ से कट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये तो सेम रहेगा ना, चाहे पॉइंट बी सी दो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो आप लाइन पे, एनी 2 पॉइंट्स यू टेक ऑन द लाइन, स्लोप विल ऑलवेज बी द सेम. स्लोप विल ऑलवेज बी द सेम. सो दिस अगेन यू कैन अप्लाई. So according to the question, what all conditions are given, you can solve it. ठीक है, तो आपको अगर पता है कि 2 पॉइंट्स दे रखे, तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, एबीसी पॉइंट दे रखे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है. अगर 3 पॉइंट्स अपन को कार्टेशियन प्लेन पे दे रखे हैं, तो हम अगर बोलें कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बहुत बड़ा हो जाएगा. ये तो सीधे आ रहा है आपका आंसर, स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी, है ना. अगर सेम आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्लियर? Yes, it's time now. Thank you, class.